So what is actually IMUCT and what is the role of it? पूछते हैं या बच्चे बहुत घबरा जाते हैं IMUCT का नाम लेके. So this is the right time for anybody to join merchant. देखिए एक होता है to get fascinated by seeing some reels or this thing and actually then working on board and making it as a career. $1,500 a month. Dollars a month. है ना? And then further he becomes bosun up goes up to $2,000 a month. तो बंदा 40 साल बोसन है तो हर साल करते करते Captain से ज़्यादा तो कैप्टन नहीं कर सकता. First of all, let us not compare national defense with merchant navy. How frequently can you visit your home in a year? बहुत रेयरली होता है. I ना? guess on तो festivals. एटलीस्ट यहाँ पर 6 महीने में तो 6 महीना पूरा हो गया आके. अच्छा क्या आपको घर आने के बाद भी सैलरी मिलती है? एग्जाम दोगे उससे पहले आपका आई चेकअप होगा. अगर आप तब आप 6 out of 6 नहीं होंगे तो आप नहीं. So hello sir, how are you? I'm good. How are you? I'm good too sir, thanks for asking. So it's been a 45 years of journey with you. आपने समुद्र की लहरों पे राज करा है for 45 years and you've been having some great memories and some great journey experiences with you. So आज we'll try to discuss most of it with our students because हमारे जो students हैं वो यही देख के inspire होते हैं and we want them to get more and more inspired and join Merchant Navy. As you know कि India one of the biggest market है for the cadets and engineers in Merchant Navy. Yes. And Indian CDC holds the maximum value as we all know. So let's try कि हम बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर कर सकें आपकी जर्नी के साथ. So sir, as we know कि IMUCT is the process, is an exam जो हमें मर्चेंट नेवी में एज ए कैडेट ज्वाइन करने के लिए या एज ए इंजीनियर ज्वाइन करने के लिए देना ही होता है. So what is actually IMUCT and what is the role of it? See, IMUCET stands for Indian Maritime University Common Entrance Test. This started because there was a lot of things happening before this. Like sometimes it was through JE, sometimes direct admission, sometimes. So Director General of Shipping thought that let us make it similar to what you have in medical, that is NEET, and in engineering, that is JE. So similar kind of thing for Merchant Navy. So IMUCT started as a entrance examination for all the various colleges which are called MTI, Maritime Training Institutes, entrance test. Right. So what all are the candidates those who are eligible for it? The eligibility for candidate is he should be 12th pass with PCM, that is physics, chemistry and maths. Right. Minimum 60% marks in that. Okay. And minimum 50% marks in English. तो सर जो बच्चे 60% नहीं स्कोर कर पा रहे हैं अपने पीसीएम में या इंग्लिश में 50 नहीं स्कोर कर पा रहे हैं उनके पास क्या ऑप्शन रहता है? सी IMUCT के लिए तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन टू एंटर मर्चेंट नेवी इफ दे हैव लेस देन 60% मार्क्स देयर इज अनदर स्ट्रीम कॉल्ड जीपी रेटिंग. राइट. They can enter through that. Plus, they can do the improvement examination and apply next year if they get 60% marks. So open school से भी do they have any option? Yes, DG Shipping allows NIOS. NIOS अलाउ करता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि NIOS के थ्रू हम एलिजिबल हैं या हमने कोई वीडियो देखी थी जिसमें कह रहे हैं. सो वीडियोस का कहना और जो एक्चुअली डीजी शिपिंग जो अपने स्टेटमेंट्स में कह रहा है जिसका सर्कुलर भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करा हुआ है, इट इज अ टू डिफरेंट थिंग. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि आपके नजरिए से NIOS इज फेयरली एलिजिबल. Yes, as per DG circular, it is allowed. As you said, there is a DG circular. तो सर जैसे नॉर्मली बच्चे हमसे भी पूछते हैं या बच्चे बहुत घबरा जाते हैं IMUCT का नाम लेके. एक हाइप क्रिएट हो गई थ्रू सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कि बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है या मतलब पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा, रैंक नहीं आ रही. तो IMUCT क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है, द फर्स्ट थिंग, एंड एक अच्छी रैंक क्या होती है? I'll tell you a background of this. Basically, all these professions are cyclic. Right. If you compare merchant navy as a profession with other normal like PCM के बाद engineering या computer वाला, and if I explain to you in detail, you will feel that money wise, job security wise, job satisfaction wise, merchant navy is any day better. Right. Now what happens is there is a cycle where like nowadays people are going for computer science and all these things. In my time when I had appeared, the craze was for merchant navy. So Right. that time, even the people who have got selected in Indian college used to leave and come into merchant navy.
So the cycle today is picking up again back for merchant navy. So as of now, I can say it is comparatively easier to get into merchant navy as compared to JE, means IIT. Right, right, right. But mind you, it's a matter of time. As soon as the awareness is more in candidates about the career in merchant navy, it will catch up, and then the exam will also become tough, and Right, the right, scoring right. rate will also become tough. So this is the right time for anybody to join merchant navy. सो अगर किसी को ज्वाइन करना है एंड दे पास द 12th, सो द बेस्ट थिंग के आज ही ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि कल को कंपटीशन डिफिकल्ट होने बढ़ा जा रहा बढ़ेगा है एंड पेपर का पैटर्न एंड पेपर का बढ़ेगा. क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी See, डिफिकल्ट एनीवे. everything is supply and demand. राइट, राइट, Today, राइट. demand is more, supply is less. People are getting selected. एग्जैक्टली, डिमांड One, एंड सप्लाई. हाँ, राइट. once more number of candidates applied, the seats are limited. The जो examination will, एनडीए में हुआ हाँ, इवेंचुअली. examination will become tough. राइट, राइट, राइट. एनडीए में भी यही हुआ था Hmm. कि द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर इंक्रीजिंग रैपिडली एंड इवेंचुअली एनडीए को इतना ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया कि आज बच्चा 2 साल 3 साल की पढ़ाई करता है और उसके बाद भी कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं हो पाते. अच्छा, एनडीए की बात आई तो सर एक आईएमयू सिटी के साथ, मर्चेंट नेवी के साथ एक बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड एनडीए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए को भी माना जाता है कि देयर आर 16 लाख एप्लीकेशंस फिलिंग अप एवरी ईयर जो एनडीए देना चाह रहे हैं, और उसमें से 300 400 500 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं एंड रेस्ट इधर दे आर रीअपियरिंग अगेन फॉर द एनडीए, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एज लिमिट से बाहर हो जाते हैं, दे आर लुकिंग फॉर द अनदर ऑप्शन. तो उन बच्चों के लिए आईएमयू सिटी या मर्चेंट नेवी कैसा ऑप्शन रहता है? See, again, I will tell you there are two things to it. First of all, let us not compare national defense with merchant navy. राइट, They are two different things. One is a government job, other is multinational job, राइट, private job. राइट. That one has got various other paraphernalias which this does not have. You cannot compare the salaries. You cannot compare uh, the sort of psyche which is there for NDA and which is there for merchant navy. So people who are opting for NDA or opting for merchant navy should be clear in their mind. I have to join defense services or I have to join merchant navy. राइट, Let राइट, us राइट, not राइट, make it a sort of राइट. ऑल्टरनेटिव कि ये सेकेंडरी नहीं हुआ तो ये ऑप्शंस. नहीं हुआ, राइट, है ना. राइट, राइट, ऑल्टरनेटिव नहीं राइट. रखना चाहिए. आप पहले से काउंसलिंग प्रॉपर करिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है. हाँ, बिकॉज अगर 19 से ज्यादा भी आप हो गए, एज एनडीए कट्स यू आउट 19, तो आपके पास आफ्टर ग्रेजुएशन अगेन सीडीएस का ऑप्शन होता ही है. होता है. सो अगर आपको डिफेंस ही ज्वाइन हाँ, करना है तो बेटर गो विद यस, सीडीएस देयर एंड आर टू ओटीए. डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस, राइट, है राइट, ना. राइट, राइट. वो किसी भी तरीके से सिमिलर ऑल्टरनेट नहीं ऑप्शंस ना बनाया जाए. नहीं बनाया जाए. एग्जैक्टली, हाँ. एग्जैक्टली. और दूसरी चीज, मर्चेंट नेवी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है आईएमयूसीटी की, वो एनडीए से डिफरेंट है. राइट, सिलेबस भी डिफरेंट डिफरेंट है, है, सिलेबस भी different. है ना. अच्छा, जो इंस्टीट्यूट्स या जो लाइक ट्यूशन सेंटर्स या कुछ बच्चे जो एनडीए एंड आईएमयूसीटी को साथ में पढ़ा रहे हैं, सेम क्लासेस में बिठा के पढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Well, I do not have comments on what people are doing. I can say about myself, I will never mix NDA and IMUCT. But is this justified for the students to be sitting in the class जो That एनडीए is that is their own judgment. I have made it very clear that you cannot compare these two career options. करियर, बिकॉज क्या होता है ना, एनडीए हैज टू मच ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, हिस्ट्री है इसमें, आर्ट्स एंड साइंस है इसमें, इंडियन पॉलिटी है, whereas इन आईएमयूसीटी ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, यहाँ पर मेनली पीसीएम में थोड़ा सा जनरल नॉलेज, थोड़ा सा जनरल नॉलेज या थोड़ा सा ज्योग्राफी दे आस्क यू, बट वो हिस्ट्री पढ़ने की या पॉलिटी पढ़ने की आईएमसीटी में क्या जरूरत है, वो चीज. अच्छा, व्हाट इज द गुड रैंक इन आईएमसीटी? के बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर कितनी रैंक लेके आनी चाहिए. देखिए, देर आर सो मेनी मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड everybody who qualifies nearly gets observed. लेकिन एब्जॉर्प्शन का अगर आप गुड रैंक बोलेंगे तो देन इट डिपेंड्स व्हाट आर यू टारगेटिंग. आर यू गोइंग टू टारगेट टीएस चाणक्य और डीएमईटी, और आर यू लुकिंग फॉर some other private institutes, or are you looking for institute in your locality? राइट. Everybody gets observed. Everybody has to finally appear for second merit examination. So ऐसा कुछ नहीं है.
लेकिन अगर जो आपका पूछना या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या रैंक होनी चाहिए, फॉर दैट दिस रैंक मैटर्स व्हेन दे गो फॉर स्पॉन्सरशिप, राइट 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 राइट। देन इट मैटर्स। सो एक अच्छी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल ऐसे एंग्लो ईस्टर्न, एक अच्छी रैंक क्या होनी चाहिए, या कोई भी कंपनी, नहीं लेट्स देखिए, नॉट इसमें इतने सारे बच्चे अपियर होते हैं, जैसे लास्ट ईयर 9,000 रैंक तक के बच्चे क्वालिफाइड माने, 19 19,000 तक 19 के क्वालिफाइड माने गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी रैंक कम से कम 5,000 से नीचे होनी नीचे चाहिए। होनी चाहिए। और वैसे तो रैंक मतलब जितनी नीचे होगी, जितनी सिंगल डिजिट या टू डिजिट में होगी, उतना बेटर होता है, उतना बेटर है उतना वो। बेटर। लेकिन अगेन आई रिपीट, nearly everybody who qualifies gets absorbed, राइट but good shipping companies, they have a choice. For राइट example, राइट राइट। if IMUCT eligibility is 60%, but certain shipping companies they say no, we'll take only above 70%. Yeah, the couple of companies हाँ, will, तो उनके पास अगेन सप्लाई एंड डिमांड, दे आर इन डिमांड, सो दे सेलेक्ट, दे फिल्टर देम they're आउट, making their दे eligibility criteria more दे difficult, फिल्टर देम they आउट। filter them out। अच्छा, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाने वाला, कई बार क्वेश्चन हमें भी फंसा देता है, हम भी इरिटेट हो जाते हैं क्वेश्चन से, विच कोर्स इज बेटर, डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस? See, DNS is basically to appear for second mates, टाइम सेम लगता है ना। डीएनएस में आप एक साल करते हो, फिर टू 18 डू months थ्री of शिफ्ट्स, 18 months मींस 3 years, 3 years। so 4 year। यहाँ Right पर प्लस देन यू हैव टू अटेंड टू द कॉलेज बिकॉज यू आर नॉट exempted फ्रॉम कॉलेज, right right एंड right। देन अपीयर फॉर द एग्जाम। सो रफली 5.5 साल के करीब आपको सेकंड मेट क्लियर करने में लगता है। लगेगा ये। यहाँ आप 3 साल करते हैं और 1 साल शिप पे करते हैं, 4 साढ़े 4 साल समझ लो, और कॉलेज आप एग्जेम्प्टेड होते हो, तो राइट, 5 साल में यहाँ हो जाते हो। बट डिफरेंस इज देयर यू हैव अ डिप्लोमा, हियर यू हैव अ डिग्री। डिग्री। राइट राइट राइट। एंड अच्छा, ये जो बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है कि डीएनएस जो ज्यादातर बच्चे कोर्स करना चूज करते हैं, द थिंग इज के दे वांट टू स्टार्ट अर्निंग एज सून एज दे कैन, कि 1 साल का डिप्लोमा है, 1 साल का डिप्लोमा वाइंड अप करा एंड दे स्टार्टेड अर्निंग। कितना जस्टिफाइड है एक 18 19 साल के बच्चे के लिए ये चीज? देखिए, ये अगेन फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। देर आर पीपल हु कैनॉट अफोर्ड टू पे 3 years ऑफ फीस, सो दे से ओके 1 year फीस एंड देन द स्टूडेंट इज ऑन हिज ओन, स्टार्टेड अर्निंग। है ना। लेकिन अब स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो this stipend, if you are considering as earning, then take from this day one डे वन। till 10 years and see who has earned more, a BSc guy राइट। or a DNS guy. So eventually the BSc guy is going to be Will earning going more, earning more will and be getting earning more। faster promotions. अच्छा, ये मैं एक चीज यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम डिप्लोमा या डिग्री को कंपेयर करते हैं, तो डिग्री एनी डे होल्ड्स अ ग्रेटर वैल्यू इन माय पर्सपेक्टिव। Yes. अब डीएनएस हैज इट्स ओन पर्क्स, बीएससी हैज इट्स ओन पर्क्स, बट अगर हम डिप्लोमा डिग्री को कंपेयर कर रहे हैं, तो एनी डे डिग्री इज अ बेटर ऑप्शन। After degree, you can suppose because of the circumstances you don't want to pursue a career in merchant navy. राइट। You have an option to start to do a master's degree, say MBA or something, and choose a different अच्छा, profession. एक सवाल यहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स भी पूछते हैं कि व्हाट इफ दे परस्यू बीएससी नॉटिकल साइंस, इज दैट इक्वली वैलिडेटेड फॉर लाइक एनी अदर ग्रेजुएशन? उसके बाद वो Yes, जाके यूपीएससी का पेपर भी दे yes, सकते हैं? yes, दे yes, सकते हैं, दैट मीन्स। yes. तो क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि क्या ये नॉर्मल ग्रेजुएशन की नॉर्मल All graduates can appear for UPSC, यूपीएससी, including BSc Nautical Science. तो इक्वली ग्रेजुएशन की वैल्यू होल्ड Yes, करता है and और ये तो आप डेक साइड बोल रहे हो, जी। बीटेक मरीन इंजीनियर वाला भी कर सकता है। सेम है, सेम है, सेम है, डिग्री तो डिग्री है। और सर, इसमें एक सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ही हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई तो हैव अ ब्रीफ गुड वैल्यू इंफॉर्मेशन, आपके पास भी गुड इंफॉर्मेशन। सो द थिंग इज, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि डीएनएस की सैलरी क्या होती है? डीएनएस की सैलरी होती है, दोनों की स्टाइपेंड होती है। राइट। लेट अस नॉट से इट एज अ सैलरी, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड होता है, तो बीएससी वाले को भी 1 साल स्टाइपेंड मिलता है, डीएनएस को भी स्टाइपेंड मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इसको अगर वो काउंट कर रहा है कि मेरी सैलरी है, तो वो गलत है। सैलरी आपकी शुरू होगी सेकंड मेट्स सेकंड के मैच के बाद, बाद। तो एग्जैक्टली। बीएससी वाला पहले हैज एन अपर हैंड।
बीएससी वाला इज एनी डे इज हैविंग अपर हैंड, राइट। अच्छा, एज लिमिट क्या रहती है सर? एज लिमिट टिल 25 years. 25 ईयर, और हाँ, मिनिमम maximum एज लिमिट क्या? 17. 17 ईयर। अच्छा, इज पासपोर्ट नेसेसरी? Yes, और अगर passport is necessary. We do allow without passport, but during the training period, he has to ही has हैज passport. टू, ये भी आई गेस बीएससी के केस में, हाँ, डीएनएस में तो शायद ये नहीं, DNS में you have to come with a passport. कम विद द पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यू कैन नॉट ज्वाइन No. डीएनएस को, हम्म। बट बीएससी आप ज्वाइन कर सकते हो कर सकते हो, ड्यूरिंग द, 3 साल आपके पास टाइम है, उसमें पासपोर्ट राइट बना राइट लीजिए. राइट राइट। अच्छा, what will be the better career options for 2026 students appearing for IMCT? Means deck or engine. Deck or engine, right? See, both career options are very good. एक चीज ये होता है कि डेक वाला साइड का कैप्टन बनता है, इंजन साइड का चीफ इंजीनियर बनता Right. है ना? तो कुछ लोग बोलते हैं हमें कैप्टन बनना है, तो मैं कहता हूँ डेक साइड में आओ. Right. Otherwise, if you have a flair for engineering, some people have a engineering flair, then it's equally Go good. Equally go good. go. So मतलब, अच्छा हमसे भी जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि नहीं हमें बीटेक अपने बच्चे को कराना है, तो हम भी उनको एक ही चीज कहते हैं कि इंजन साइड सिर्फ तब चूज करिए जब आपको बहुत ज्यादा मशीनों से प्यार है। अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए मर्चेंट नेवी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चों ने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वीडियोस देखी हुई होती हैं हाथ में मग पकड़ के, और सनसेट के साथ जो है कैडेट्स या ऑफिसर्स फोटो इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं वो करने के लिए। तो सिर्फ अगर वही करना है ना, तो आई गेस डेक इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट, आप डेक ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको मशीनों से बहुत ज्यादा प्यार है, सिर्फ तभी बीटेक ज्वाइन करिए। देखिए, एक होता है to get fascinated by seeing some reels or this thing, and actually then working on board and making it as a career, राइट है ना? राइट राइट। तो वो थोड़े दिन में आपको पता लगता है कहाँ आप हो और क्या करना है. तो उसमें एक, why I said engineering is equally good, because you have so many other technical options when you want to come ashore, which are more than a deck officer. इंजीनियरिंग में। Engineering. अच्छा, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस दे कैन चूज आफ्टर क्विटिंग द सी टाइम, एंड फॉर द डेक आल्सो एंड फॉर द इंजन आल्सो? See, the engineers, they can get into any industry where there are boilers, where there are purifiers, where there are large generators, auxiliary engine. राइट राइट। So with the experience of the ship, they can enter that side. जो डेक साइड वाले होते हैं, मेनली दे कम इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, फॉर एग्जांपल सुपरिटेंडेंट्स, or maybe like me into maritime education. Some become lawyers, even engineers become lawyers. अच्छा, हम Some also become naval architects. मैरीटाइम लॉ, जैसे हम एक बार पहले भी डिस्कस कर रहे थे व्हेन वी वर सिटिंग, सो हाउ गुड इज इट फॉर अ मर्चेंट नेवी कैंडिडेट टू Very गो good, एंड जॉइन मैरीटाइम लॉ? very good. Maritime law and arbitration is a very good field where mostly Europeans were there. The base was in London, then shifted to Hong Kong and Singapore. But it's a very good career option for. क्योंकि अभी इंडिया में मैं देखता हूँ बहुत कम लोग हैं जो बहुत कम मैरीटाइम है, लॉ, कुछ हैं बॉम्बे में और दिल्ली में, बट बहुत कम है. सो इट्स अ एंड दे गुड करियर स्कोप इट्स अ ना। वेरी गुड करियर स्कोप. एंड फॉर रेगुलर लॉयर्स भी कर सकते हैं हाँ, मैरीटाइम लॉ? LLB तो करना ही पड़ता है. LLB के बाद यू हैव टू स्पेशलाइज इन मैरिटाइम लॉ. मैरीटाइम लॉ, राइट 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 राइट। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दोज कैंडिडेट्स दोज हु डज नॉट हैव द मिनिमम 60% इन द पीसीएम, they can join GP rating course, or the candidate from coming from a commerce background or arts background, हाँ, like उसमें तो जीपी रेटिंग रिक्वायरमेंट इज 10th. 10th, right? 10th में आपके फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली साइंस इंग्लिश एंड मैथ्स में आपके पास 40% अबव होने चाहिए, आप जीपी रेटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या जीपी रेटिंग से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना सही है? हाँ, व्हाई नॉट? क्या See, डिफरेंस even रहता है? even from a GP rating, you have a career path to become an officer. राइट, तो एक जीपी रेटिंग वाला बच्चा भी कैप्टन बन सकता है बिल्कुल बन सकता है, या चीफ इंजीनियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता सो व्हाट विल बी द करियर hierarchy for that guy? है. See, same thing. Once you do join as a GP rating, some amount of sea time prescribed as per DG schedule 36 months. that you have to do, and after that you can appear for your second mates Second mate. or class 4 COC. Okay, and then you can move further as an Yes, officer too. yes. Okay, okay. अच्छा, जीपी रेटिंग की सैलरी क्या रहती है? यहाँ तो सैलरी होती नहीं, है, आई गेस यहाँ तो स्टाइपेंड नहीं होता। एंट्रेंस में तो he'll go as trainee OS, राइट तो उसमें तो कम होती है. फिर
ऑर्डिनरी सीमैन बनता है, फिर एबी या AB. मोटरमैन बनेगा, इधर वाइपर से मोटरमैन बनेगा. Right. So AB gets around 1,200 to $1,500 a month, Dollars a है month ना. And then further he becomes bosun, goes up to $2,000 a month. for the fresher bosun. हाँ. The fresher bosun. अच्छा, इसमें जैसे बोसन की $2,000 है, as like some candidate those who do not want to join as an officer line, तो क्या वो बोसन कंटिन्यू कर सकता है throughout the बिल्कुल कर life? सकता है, बिल्कुल एंड कर क्या सकता उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी? है. वो डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी व्हाट इंक्रीमेंट दे गिव. ओके, बट नॉर्मली मिल ही जाता है. हाँ जी, हाँ नॉर्मली जी, मिल. हाँ जी. अच्छा, शिप पे कुछ कंपनी का ये होता है कि आफ्टर सम टाइम दे कैप इट. आप ये हाँ, समझिए कि अगर वो बंदा 40 साल बोसन है तो हर साल करते करते कैप्टन से उसका ज्यादा तो कैप्टन नहीं कर सकता उसको. राइट. अच्छा, इफ वी कंपेयर जीपी रेटिंग एंड डीएनएस फॉर अ कैंडिडेट जिसके 60% पीसीएम से ज्यादा है, उसके लिए क्या बेटर रहेगा? एंड इफ Of ही course, डज नॉट, DNS, if you want to become an officer, DNS. बट व्हाट इफ इन द केस के उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कम है? See, there are so many banks which give educational loans. लोन मिल है जाता ना, है easily. लोन आराम से मिल जाता है, फिर आप शिप पे जाके लोन पे ऑफ कर दो. पे ऑफ कर सकते हैं लाइक एनी अदर कोर्स नॉर्मली जो होता है, क्योंकि बीटेक भी आई गेस 14-15 लाख का आजकल हो रहा है, और उसके लिए भी बैंक से इजीली फाइनेंसिंग, इजीली तो मिल जाते हमें हैं. मर्चेंट And the नेवी के good लिए भी thing मिल is जाता education loan में you don't have to pay as a student. When है. you get a job, then you pay. देन यू हैव टू पे, एंड उससे पहले का जो इंटरेस्ट रेट होता है आई गेस वो भी सब्सिडाइज्ड होता है. I'm not aware. वो सब्सिडाइज्ड होता है. So, अच्छा, क्या ये मेरे मेरे बेटे ने लिया था. जी, जब एमटेक किया कोई सब्सिडाइज नहीं था. मैंने लिया था सर, सब्सिडाइज था. अभी मेरा बाय द बेटा. टाइम यू आर इन द कॉलेज ना, you don't have to pay any EMI. You don't have to pay, but then it is accumulated. It is accumulated. नहीं. He paid 10. Yes, it was accumulated. अच्छा, मुझे ये ध्यान नहीं सर. I'm sorry. And he was paying 10%. Okay, अच्छा 10%. Okay. अच्छा, क्या ये मर्चेंट नेवी एक परमानेंट करियर ऑप्शन है? What do you mean by permanent? Means till the time you retire, till the age of 60. And I know so many of my batchmates who sailed till the age of 60. And Okay. And they're fairly sailing. हाँ, medically fit है, सेल करते हैं. अच्छा, what are the medical requirements for this? See, medical requirement as per DGS criteria is like physically fit तो होना चाहिए, plus eyesight का है. डेक साइड में 6 out of 6 eyesight होनी चाहिए. Right. और इंजन साइड में up to 6 out of 9 is allowed. Okay. And for the candidates, those who are having color blindness, No, they are not allowed. डेक साइड they cannot join. वो इंजन भी नहीं कर सकते सर अब तो सीसीएमसी भी नहीं अलाउ करते. नहीं. अब तो नहीं कर रहे. इसको दोबारा कर लेते हैं एक बारी ना. And what for the candidates those who are having color blindness? They cannot join. They cannot join merchant navy, right? They cannot join any of the forces. मर्चेंट नेवी भी नहीं कर सकते, एनडीए भी नहीं कर सकते. कुछ भी नहीं कर सकते. अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं लाइक जिनको प्रीवियसली कभी किडनी स्टोन हुआ हुआ होता है या किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ हुआ होता है, एंड बट अब दे आर फेयरली फाइन. Yes, they can. दे कैन ज्वाइन. या कोई ऐसे कि किसी का बचपन में कभी कोई ऑपरेशन हुआ लाइक अपेंडिसाइटिस फॉर एग्जांपल. See, on these medical things, now things keep changing. So I would rather not comment on medical things. I am not qualified. Right. So let DGS approved DG doctors doctors say. say They that. should say. Right. ओके. अच्छा, ओके. अच्छा, जो एक हम लोग ये सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से, एक मिथ बना दिया गया है कि मर्चेंट नेवी का मतलब है कि 6 महीने यू हैव टू सेल एंड 6 महीने आप घर पे रहोगे. तो क्या वो एक्चुअली में ही ऐसा है? See, when we were sailing, that time it was true, 6 on 6 off. But nowadays they are shorter contracts. But then I ask one question. Let's forget merchant navy. Any other career where you have to go out of your comfort of your home. Right. Say, for example, you are a computer engineer. You will get job in Dehradun, out of Dehradun, like in Bangalore or Hyderabad or Chennai or someplace. So how frequently can you visit your home in a year? बहुत रेयरली होता है आई है ना? गेस ऑन तो फेस्टिवल्स. एटलीस्ट यहाँ पर 6 महीने में तो 6 महीना पूरा रहोगे आके. अच्छा, क्या आपको घर आने के बाद भी सैलरी मिलती है? The salary is calculated for the entire contract and given to you while you are on the contract, which includes leave wages. Which includes leave wage. तो बेसिकली छुट्टी के पैसे मिलते हैं बट आपको शिप पे ही मिल जाते हैं. आपके लीव के पहले ही आपको लीव के वेजेस मिल जाते. अच्छा, क्या कोई कंपनी ऐसी भी है जो घर आने के बाद भी स्टिल दे आर पेइंग यू? Yes, there are certain companies. I know for sure Shipping Corporation of India has got around the year payment system. Right. There are other shipping companies also, but I am not updated whether they are still doing it. कि मर्स के बारे में भी हमने सुना I है am not कि updated. Okay, हाँ, okay, because okay. there were
मर्स भी थी, शेवरॉन भी थी, जो कि राउंड द ईयर देती थी। अच्छा, कुछ केसेस में बच्चों की आईसाइट जैसे 6/12 फॉर एग्जांपल है, एंड नाउ दे आर गोइंग एंड परसुइंग द लेसिक और द लेजर सर्जरी, एंड आफ्टर डूइंग लेजर एंड लेसिक दे आर हैविंग 6/6। क्या 6/6 आने के बाद, लेसिक के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं मशीनरी? See, again, this is something related to medical. I am not qualified to comment on that कर सकते हैं because सर। 6 out of 6 होने के बाद जो मैंने सुना है, within a year or two, the eye becomes bad again. I बट have सर had देर, so many cases. There have been so many cases where the eye does not sustain 6 out of 6 for a longer time. ओके, सो अगर सस्टेन कर जा रही है हाँ, तो क्योंकि अलाउड है। आपको फिर से जब आप सेकंड मेट का एग्जाम दोगे, उससे पहले आपका आई चेकअप होगा। अगर राइट आप राइट। तब आप 6 out of 6 नहीं होंगे तो आप नहीं नहीं एलिजिबल नहीं, होगे। तो बाय द टाइम ऑफ योर मेडिकल अगर आपकी 6/6 है, हाँ, सेकंड मेट मेडिकल तक। सेकंड मेट मेडिकल तक, बी इट योर लेसिक सर्जरी और लेजर सर्जरी, आपने कुछ भी कराया हुआ है, हाँ, अगर यू सस्टेन योर 6/6 बाय देन तो आप कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके सर, दैट्स ऑल द क्वेश्चंस आई हैव फॉर टुडे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू say to our students, those who are watching? Well, I'll say this is a very good career option, and what I feel that the awareness in North India is little bit less. So, uh, if you are interested to don a uniform like me, और आप समुद्र की लहरों पर राज करना चाहते हैं, तो you are most welcome. Come to our academy, and we'll handhold you for further career progression.